students, how are you all? I hope you all must be going well. So today students, we are back here in today's session of class 3rd, chapter number 7 about air. So students, as we all know that air is everywhere. It is all around us and every living being needs air to survive. Okay, there is no possibility of life without air. Now, why the air is so important to us, let us learn in this session today. Okay, see, first of all, they have given an activity to do. What you have to do in this? You have to color the clouds red of the things that need air. यानी कि यहाँ पे आपको उन clouds को red color करना है जिन चीजों को air की requirement होती है. As I told you that all living things need air. सभी living things को air की requirement है. No non-living thing need air. किसी भी non-living thing को air की requirement नहीं होती है. And what are living things? All those things which have life, like human beings, plants, animals, all these are living things, right? So now for that, see, if we talk about this cloud, so in this we have bird. So bird is an animal, it is a living being. That means it needs air. So we will color it with red color. Okay? Secondly, pen. Pen क्या है? ये एक non-living thing है. A non-living thing को air की requirement नहीं होती. Third, we have girl. Girl, again, a living being. So we will color it. Okay. Cat, again, a living being. You will color it red. Mobile. Mobile is a non-living thing. That means it does not need air. Plant is a living being. It also needs air. Box is a non-living thing. It does not need air. Okay. So this is how we have completed our activity. Now let us talk about air. Air is all around us. It is called the Earth atmosphere. It has no color or smell, so you can't see or smell it. However, you can feel it when you move around fast, and moving air is called wind. So student, what they're saying कि air हमारे चारों तरफ present है. Okay, and इसी layer of air को, ये जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है, इसे अर्थ का एटमॉस्फेयर कहा जाता है. स्टूडेंट्स, एयर की ना तो कोई कलर होता है एयर का और ना ही कोई स्मेल, एंड इसीलिए हम ना तो एयर को देख सकते हैं ना ही हम उसे स्मेल कर सकते हैं. बट वी कैन फील एयर. हम एयर को फील कर सकते हैं जब एयर मूव करती है. हमारे चारों तरफ एयर मूव करेगी काफी फास्टली, तो आप एयर को फील कर सकते हो. एंड मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट विंड. ओके, नाउ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. एंड जब विंड बहुत जेंटली ब्लो करती है, वी कॉल इट ब्रीज. इट क्रिएट्स अ प्लेजेंट एंड सूदिंग फील. ब्रीज के थ्रू एक बहुत ही प्लेजेंट और एक बहुत ही सूदिंग फीलिंग आती है. ऑन द अदर हैंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट अ स्टॉर्मी वेदर. लेकिन वहीं जब ये विंड बहुत ही स्ट्रांगली ब्लो करती है, हम इसे स्टॉर्म कहते हैं. एंड स्टॉर्म्स आर नॉट गुड. दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग which comes in their paths. Earth is the only known planet to have air and water. Very important. Earth एक अकेला ऐसा planet है जिस पर air and water present है, and therefore life is possible on the Earth. The next topic which we have is of fresh air. So air is a mixture of many gases like oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. It also contains other things like water vapor, dust, germs, and smoke. तो स्टूडेंट, व्हाट दे आर सेइंग कि एयर जो है क्या है? इट इज अ मिक्सचर. एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड इन गैसेस के अलावा एयर के अंदर वाटर वेपर, डस्ट, जर्म्स, स्मोक भी मिक्स होते हैं. नाउ द एयर विच इज फ्री ऑफ. अब एक ऐसी एयर जो डस्ट, जर्म्स एंड स्मोक से क्या हो? फ्री हो. वी कॉल दैट एयर फ्रेश एयर और क्लीन एयर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ फ्रेश एयर. सो अब फ्रेश एयर के क्या सोर्सेज हैं? सो ट्रीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश एयर. ओके, सो जो फ्रेश एयर हमें मिलती है वो ट्रीज से मिलती है, बिकॉज ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर में से एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन गैस. एंड दिस ऑक्सीजन गैस, और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज इट इज अ लाइफ सपोर्टर गैस ऑफ एनी लिविंग बीइंग. We should breathe in fresh air. It keeps us healthy. And हम सभी को हमेशा fresh air में breathe करना चाहिए, because ये हमें healthy रखती है. Okay?
नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम यूजेस ऑफ एयर। तो हम डिस्कस करेंगे एयर के डिफरेंट यूजेस को। नंबर 1, एयर हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। एयर के थ्रू सभी लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर पाते हैं। एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। एयर की वजह से बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं। इट हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स। एयर की वजह से आप काइट्स फ्लाई कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स। जो वेट क्लोथ्स हैं, गीले कपड़े हैं, वो ड्राई होते हैं बिकॉज ऑफ एयर ओनली। एंड एयर कैरीज द सीड्स ऑफ अ प्लांट टू न्यू प्लेसेस। एयर का एक और यूज है दैट एयर क्या है, प्लांट की जो सीड्स है उनको क्या कैरी करती है टू द न्यू प्लेसेस। देन इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट। एयर शाफ्ट में से ग्रेन्स को भी सेपरेट आउट करने में हेल्पफुल होती है। इट हेल्प्स अ हॉट एयर बलून टू राइज एंड फ्लाई। एयर के थ्रू एक जो हॉट एयर बलून है वो ऊपर की तरफ राइज कर पाता है एंड इट कुड फ्लाई। Then air is used to play instruments. Air के थ्रू हम कुछ musical instruments को भी play कर पाते हैं, like we have flute and mouth organ. These are the instruments which are played by using air only. It helps sailboats to move on water. Sailboats water पे move करती हैं because of air only. Air helps in moving windmills. Windmills को move करने के लिए भी air help करती है. And जब एक windmill move करता है, it can pump up water. Windmill एक water को pump up करता है, grains को grind कर सकता है, and it could also produce electricity. Okay, so these were the different uses of air. Now, next topic which we have is that is of air pollution. So, addition of harmful substances to the air is called air pollution. अब एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस का ऐड हो जाना जिससे एयर आपकी अनहेल्दी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. एयर गेट्स पोल्यूटेड. अब एयर किसकी वजह से पोल्यूट होती है? कुछ सब्सटेंसेस की प्रेजेंस से, लाइक स्मोक, जर्म्स, फ्यूम्स, बैक्टीरिया, डस्ट एंड सम हार्मफुल गैसेस. ओके, ये सभी वो सब्सटेंसेस हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं. एंड दिस पोल्यूटेड एयर, फिर ये पोल्यूटेड एयर जो है हमारी हेल्थ को हार्म करती है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है. इट कॉजेज अ नंबर ऑफ लंग डिजीजेस. इस पोल्यूटेड एयर से बहुत सारी लंग डिजीजेस हो सकती हैं, लाइक अस्थमा. ओके, इसके अलावा आई इन्फेक्शंस होता है, बर्निंग सेंसेशन आपको अपनी आईज में फील होती है बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेड एयर ओनली. ओके, एयर पोल्यूशन कैन बी ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड कॉजेस. और ये एयर पोल्यूशन अब आपके कुछ नेचुरल या मैन मेड कॉजेस की वजह से होते हैं. सो नेचुरल कॉजेस क्या क्या है? दैट इज फॉरेस्ट फायर, volcanoes and dust storms. These are some few natural sources of pollution. ये natural sources हैं, that means in nature की वजह से क्या होता है, एयर का pollution जो होता है वो यही कुछ reasons है. This is forest fire, volcano and dust storm. Then we have some man-made causes also. कुछ reasons, कुछ कारण जो हैं वो human beings की वजह से भी होती है. That is what स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स. व्हीकल्स के थ्रू जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्रीज के थ्रू जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, देन बर्निंग ऑफ कोल, वुड, ड्राई लीव एंड वेस्ट कॉजेज एयर पोल्यूशन. जब आप कोल, वुड, ये जो सूखी पत्तियां हैं या वेस्ट वगैरह जब हम इसे बर्न करते हैं तो उसके थ्रू भी जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, दैट ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन. एंड बिकॉज ये सभी चीजें एक ह्यूमन बींग के थ्रू करी जाती हैं, दिस इज कॉल्ड मैन मेड एयर पोल्यूशन. Cutting of trees and forests by human or making more houses and factories increases air pollution. And उसके साथ साथ जब हम trees को and forests को कट कर देते हैं और भी ज्यादा houses बनाने के लिए या factories बनाने के लिए, because उसके लिए हमें land की requirement है, and land हमें कैसे मिलती है? जब हम trees या forests को कट कर देते हैं तो उसके थ्रू हमें land मिलती है and फिर वहाँ पे हम houses and factories को build करते हैं. तो ये भी क्या करता है? एयर पोल्यूशन को इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ट्रीज एंड फॉरेस्ट क्या करते हैं? वो एयर को प्योरीफाई करते हैं. बट इफ दे आर कट डाउन देन द एयर पोल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड. यू कैन सी दिस इज एयर पोल्यूशन बाय व्हीकल्स. ये व्हीकल्स के थ्रू एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये फैक्ट्रीज के थ्रू एयर पोल्यूशन है, एंड ये जब आप वुड बर्न कर रहे हो उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है. Now measures to prevent air pollution. अब एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? Number 1 and the very important measure is to plant more and more trees to get fresh air. जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें trees को plant करना चाहिए so that हमें fresh air मिल सके.
सेकेंड, ऑल व्हीकल्स शुड गेट स्मोक एमिशन टेस्ट डन. जितने भी व्हीकल्स है उनमें स्मोक एमिशन टेस्ट होना चाहिए. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, और कार पूलिंग भी आप कर सकते हैं. बिल्ड फैक्ट्रीज आउटसाइड द सिटीज. जितनी भी फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं वो सिटी से बाहर होनी चाहिए. बरी वेस्ट. जो वेस्ट होता है उसे आपको क्या करना चाहिए, अंडर द ग्राउंड बरी करना चाहिए. लाइक वी हैव ड्राई लीव्स, एनिमल वेस्ट. तो इन सभी को आपको एक पिट यानी कि गड्ढा खोदकर उसके अंदर बरी करना चाहिए, सो दैट उसका मेन्योर बने, सॉइल फर्टाइल होगी. यू शुड नॉट बर्न इट, बिकॉज बर्निंग से इससे पोल्यूशन होता है. सो इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट वी कैन बरी इट अंडर अ पिट टू मेक मेन्योर आउट ऑफ इट. डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स. क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करने चाहिए बिकॉज इट ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. अब एनर्जी को जब स्टूडेंट्स कंजर्व किया जाता है उससे भी हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. सो फॉर दैट रिमेंबर टू टर्न ऑफ लाइट्स. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप लाइट्स को टर्न ऑफ करें व्हेन दे आर नॉट इन यूज. ओके, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक्स अप्लायंसेस, ये जितनी भी चीजें हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग देम यू शुड टर्न ऑफ देम इमीडिएटली. ऑल्सो यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स एंड अप्लायंसेस. इसके साथ साथ आपको ऐसे बल्ब्स, लाइट बल्ब्स या अप्लायंसेस को यूज करना चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, यानी कि जिनसे एनर्जी कम यूज होती है. ओके, नाउ next is what the neem and people trees are the largest emitters of oxygen. Very important. ये जो नीम एंड पीपल का पेड़ होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. सो वी शुड प्लांट देम मोर एंड मोर. Okay, so that's all for the chapter. We have discussed the very important necessity of our life, or the life supporting factor of every living being, that is air. Okay, I hope it was very clear to you. Let's meet in the next session with a new concept of science. Till then, keep going well. Thanks to everyone.